Hi, good morning, students. Hope you all will be fine. So, yesterday, what we did, we just have the introduction of the software engineering. What is the software engineering? And we also saw the syllabus of it, right? So, see what we are going to cover today. What is software engineering? We already studied some introduction part of it. Software crisis, we will study. Then, program versus software, we have already seen it yesterday, right? Now, evaluation of software engineering, how it evolved from 50s, 1950s to till now, how the technologies got changes, we'll study in this part, right? Then there is notable changes in software development practices. Yeah, from past to present, how the development has got changes, right? For the software we'll study in this. Next will be introduction to life cycle models. Some basic idea I already gave you, I think, yesterday, that the main focus will be on the models. Based on the models we are going to develop only the software, right? So based on the certain situations, certain parameters, we decide what model to choose, correct? You'll get the proper idea when we will come to this part. Last one is the summary. Okay. So what is software engineering? We already studied, right? Engineering approach to develop a software. Quickly see it. Engineering approach to develop the software. See what it is given. If a single wall is there, one man can build it. But if a proper building construction is required and it is very huge, then there is should be a teamwork. This is what engineering approach, right? Collection of the past experiences, techniques, methodologies, guidelines. We already studied this, so just move on. Yeah, this is what it is. Nothing but it is saying that software engineering is a discipline whose aim is what? To develop the quality software. Quality software itself contained that it should be delivered on the time, and it should not be over budget. Okay, and also satisfies the proper requirement of the customer. आप लोग कंफ्यूज मत होना किसी भी चीज़ में, कोई प्रॉब्लम हो तो वीक में एक दिन हम लोग डिस्कशन क्लास करेंगे, राइट? लाइव। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो उसमें हम लोग क्वेरीज देखेंगे, बच्चों की क्या प्रॉब्लम आ रही है, राइट? तो होता क्या है, देखो, लेट सपोज एक कंपनी है कोई, ठीक है, और आप हो कस्टमर। मीन्स आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, तो आप उस कंपनी पे अप्रोच करोगे, राइट? अब आप उससे क्या चाहोगे एज अ कस्टमर? कि जो जो मैंने रिक्वायरमेंट बताई, सबसे पहले तो कंपनी को क्या बताओगे? रिक्वायरमेंट्स, कि ऐसा 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 होना चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक? फिर आप एक डेडलाइन दोगे कंपनी को कि मुझे इतने तक चाहिए, इतनी डेट तक चाहिए, ठीक है? अब अब बात आती है बजट की। बजट आप नहीं बताओगे कि मेरा ये है। अब क्या होगा, कंपनी उसको एनालाइज करेगी, उसकी फिजिबिलिटी चेक करेगी कि क्या वो डेवलप कर पाएगी इस चीज़ को या नहीं। अगर वो डेवलप कर लेगी इस चीज़ को, देन they'll go to analyze the overall budget and the time which is going to be taken, ठीक है? Then they'll tell to the customer that this will be the budget, within this budget I can or they can develop the software. Now this, now dependency comes on the customer, whether he wants to develop his or her software from that company or not.
समझ में आया बेसिक आइडिया होता क्या है? ठीक है, आ गया होगा आई थिंक। कोई डाउट हो तो बताना। यस। ये क्या है, ये क्या पैटर्न बता रहा है? ये बता रहा है कि ये पास्ट एक्सपीरियंस है, यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम होता था। इट मीन्स एक्सप्लोरेटरी स्टाइल में। एक्सप्लोरेटरी स्टाइल क्या होती है आगे देखेंगे, बट अभी के लिए इतना जान लो कि एक्सप्लोरेटरी स्टाइल ये होती है कि ओन वे ऑफ डूइंग द कोडिंग बेस्ड ऑन द माइंड। मीन्स चार लोगों को एक प्रॉब्लम दी गई है तो चारों अपने हिसाब से कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को, तो हो सकता है कि चारों का कोड अलग भी हो सकता है, किसी दो का मैच करे। तो कोई गारंटी नहीं है, कोई अप्रोच फिक्स नहीं है, कोई सिस्टमेटिक वे नहीं है किसी चीज़ को करने का। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम अनऑर्गेनाइज्ड यूज़। तो इन सबको मिला के, इस इन सारे एक्सपीरियंसेस को मिला के जब हम एक सिस्टमेटिक अप्रोच रेडी करते हैं कि सबको इसी को फॉलो करना है टू डेवलप एनीथिंग और टू कोड एनीथिंग, तो वही हमारी इंजीनियरिंग कहलाती है। यही चीज़ एक ग्राफ हमारा शो कर रहा है कि बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस वी हैव डिसाइड what to choose, and based on that we can get the highest optimization and less complexity. ठीक है। now next is why software engineering। सिंपल है, आइडिया भी लगा सकते हो, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों क्यों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट है? अभी तक हमने क्या देखा, व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब देखेंगे क्यों, वाई। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं करेंगे तो पिछले वाले पे आ जाओ, ग्राफ पे। इसमें देखो क्या है, ये विदाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। आउटपुट लो भी हो रहा है, हाई भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। यहाँ पर देखो ग्राफ हमारा ऊपर ही बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या है, ऊपर बढ़ रहा है फिर नीचे जा रहा है। नीचे जाने का मतलब क्या है? इट मीन्स यहाँ से देखो एडहॉक प्रोसेस अपनाया है, यानी एक्सप्लोरेटरी स्टाइल अपनाई है। वो अपने बेसिस पे कर रहे हैं अपने माइंड से, तो हो सकता है कि वो अच्छा भी कर दें। यहाँ पर देखो कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है, यहाँ पर लीनियंसी आई है, इसको बस नीचे नहीं दिखाया गया है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बट अगर ये कहाँ पर होगा, अगर मान लो प्रॉब्लम का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाए, या मीन्स प्रॉब्लम मीन्स प्रोग्राम का साइज़ बहुत ही इंक्रीज़ हो गया, 1000 लाइन्स ऑफ कोड का हो जाए। ठीक है, मान लो 10,000 लाइन एल ओ सी है। एल ओ सी मीन्स लाइन्स ऑफ कोड। 10,000 एल ओ सी है हमारा प्रोग्राम। अब सिंगल प्रोग्रामर को प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, मीन्स साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी विल एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है, तो डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ जाएगा। देखो, टू एक्वायर स्किल्स टू डेवलप लार्ज प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है कि एज डिफ़िकल्टी लेवल increases, the exponential growth in the complexity will increase। ठीक है, देखो what it is given here, the ad hoc process, ad hoc approach breaks down, means ad hoc means same exploratory style, यानी पर्टिकुलर मैन टू मैन अपने माइंड से कर रहे हैं, वो अप्रोच ब्रेक डाउन हो जाएगी। ब्रेक डाउन मीन्स फेल हो जाएगी एज द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर इंक्रीजेज। ठीक है, इसीलिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हेल्प ले रहे हैं। इसमें कुछ नहीं है, लार्ज प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उनको मैनेज करना। ठीक है, यस। व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्राइसिस? सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है? यू माइट थिंक दैट crisis, there are a lot of software in Play Store everywhere, then what do you mean by crisis? So where is the crisis? See, होता क्या है, as you can see here, the success rate of a software is only 16%, failure rate is 31%, and over budget softwares are 53%.
जिनको भी हम सक्सेस में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। आई यू गेटिंग इट? ठीक है। अब देखो होता क्या है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है? फेल्योर रेट में अगर इंक्रीमेंट होगा, फेल्योर रेट में इंक्रीमेंट होगा, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर फेल्योर रेट में इंक्रीमेंट होता है तो क्या होगा? सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल सॉफ्टवेयर पे, उसकी क्वालिटी डाउन होगी, उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी और वो इनकम्प्लीट है, तो वो फेल्योर में ही कंसीडर होगा। अब फेल्योर होने के चांसेस क्या क्या हैं? कुछ भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई तो प्रॉब्लम आएगी प्रोग्रामर को कोड करने में, या फिर मान लो अच्छे से सब कुछ बन भी गया, सॉफ्टवेयर डेवलप भी कर दिया उन्होंने एक्सप्लोरेटरी स्टाइल से, बट जब कस्टमर ने उसको रिव्यू किया तो व्हाट दे फाउंड कि द रिक्वायरमेंट आर नॉट मैचिंग, देन ऑल्सो इट विल बी कंसिडर अंडर द फेल्योर। ठीक है। अब मान लो, अब देखते हैं ओवर बजट को क्यों इंक्लूड किया जा रहा है फेल्योर में, सक्सेस में नहीं इंक्लूड कर सकते हम। देखो होता क्या है, व्हाट हैपेंस, कंपनी ने पहले एनालाइज किया था कि हाँ वी कैन डू इट इन दिस बजट एंड ऑन दिस अप टू दिस टाइम, एंड दे स्टार्टेड। ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या आई, दे वर नॉट एबल टू डू विद इन द टाइम। अब वो टाइम पर नहीं कर पाएंगे अगर, तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयज़ की सैलरी कंपनीज को एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। इट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू द ओवर बजट। जब भी वो ओवर बजट जाएगा तो किसको हैंडल करना पड़ेगा? कंपनी को। ठीक है, बात समझ में आ रही है? प्रॉब्लम क्या होती है? एक और कारण देखो बताता हूँ मैं, ओवर बजट कब हो सकता है। मान लो प्रॉपर एनालाइजेशन हो गया स्टार्टिंग में ही कि द सॉफ्टवेयर इज़ अंडर बजट, अपने बजट में है एंड द कंपनी इज़ गोइंग टू डेवलप इट। ठीक है। लेट्स सपोज the programmers or the coders or the team involved in the software development, उसमें से 4-5 लोगों की टीम है मान लो, उसमें से 2 लोगों ने जॉब छोड़ दी, दे स्विच टू अदर कंपनी। अब प्रॉब्लम आएगी जो, अब इन्होंने क्या किया, दिस कंपनी व्हाट दे डिड और व्हाट दे विल हैव टू डू इज टू हायर द न्यू एम्प्लॉय। करेक्ट। जब न्यू एम्प्लॉय को हायर करेंगे तो अब वो न्यू एम्प्लॉय जो है उसको सब कुछ पता थोड़ी ना है, कैसे डेवलप हुआ है, क्या हुआ है, कहाँ तक कोड हुआ है। ठीक है। दे हैव टू एनालाइज डेज, डेज लगेंगे उसको एनालाइज करने में केवल। दे आर गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम टू जस्ट टू बी प्रेजेंट एट द सिचुएशन वेयर दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट द प्रीवियस एम्प्लॉयज। ठीक है, इसकी वजह से भी ओवर बजट हमारा जा सकता है सॉफ्टवेयर। समझ में आ रही है बात? तो ओवरऑल 16% ही हमारा सक्सेस रेट है सॉफ्टवेयर में, इसी वजह से हम इसको क्राइसिस बोलते हैं, क्योंकि फेल्योर रेट इंक्रीज है, इट रिजल्ट्स इनटू द सॉफ्टवेयर क्राइसिस। ठीक है। नाउ देयर आर सर्टेन रीजंस ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस विच आर कॉल्ड एज कॉजेज ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। प्रोजेक्ट आपका ओवर बजट हो गया तो क्राइसिस ही आनी है, फेल्योर में जाएगा। प्रोजेक्ट रनिंग ओवर टाइम, ओवर बजट भी हो जाएगा, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर वाज वेरी इनएफिशिएंट। अब इनएफिशिएंट मीन्स इफ़िशिएंटली वर्क नहीं कर रहा है, इनएफिशिएंट हो गया, जो मीट करनी थी उसको रिक्वायरमेंट्स को उसको मीट नहीं कर पा रहा है। राइट। प्रोजेक्ट्स वर अनमैनेजेबल एंड कोड डिफ़िकल्ट टू मेंटेन अर्लियर मतलब यहाँ पर देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है। पहले कंपनी ने एनालाइज कर लिया था कि दे विल गेट एंड दे विल मैनेज इट, एवरीथिंग दे कैन मैनेज, बट लेटर ऑन व्हेन दे started doing the software development they were not able to manage it। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, डिफ़िकल्टीज आने लगी, अब उनको न्यू हायर करनी पड़ेगी,
इसकी वजह से भी फेलियर रेट इंक्रीज़ होगा, ओवर बजट होगा, ओवर टाइम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया बट क्वालिटी लो है, मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी हाई है। ठीक है। रिक्वायरमेंट को मीट कर पा रहा है बट क्वालिटी मीन्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड दैट लो क्वालिटी मीन्स हो सकता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को 90% ही फिल कर रहा हो ये, देन ऑल्सो इट विल बी ट्रीट एज लो क्वालिटी। ठीक है। एंड अदर थिंग इज कब उसको लो क्वालिटी ट्रीट करेंगे, एज द ट्रैफिक इंक्रीजेज ऑन द सॉफ्टवेयर इट गेट्स डाउन, लो क्वालिटी कॉम्प्लेक्सिटी हाई है। ठीक है। सॉफ्टवेयर ऑफन डिड नॉट मीट द रिक्वायरमेंट, तो कवर हो गया ऑलरेडी अदर अदर पॉइंट्स में। ठीक है। नेक्स्ट इज factors contributing to the software crisis. What are the factors which are जिनकी वजह अभी तक क्या था, इनकी वजह से आना ही था, कॉजेस कारण क्या है सॉफ्टवेयर क्राइसिस। अब ये क्या है, ये ऐसे फैक्टर्स हैं कि इफ़ दे आर प्रेजेंट दे कैन कंट्रीब्यूट टू द सॉफ्टवेयर क्राइसिस, मीन्स probability of crisis will increase if these are the factors involved in your software। प्रॉब्लम लार्ज है, पॉसिबिलिटी हाई है कि डिफ़िकल्टी बढ़ेगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। ठीक है। आपके एम्प्लॉयज़ और जो भी प्रोग्रामर्स हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, हाई चांस क्राइसिस आएगा। स्किल शॉर्टेज है, गोइंग टू रिजल्ट द क्राइसिस। लो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, देन ऑल्सो गोइंग टू बी इन द क्राइसिस। द नेक्स्ट इज, आई थिंक सॉफ्टवेयर क्राइसिस आपको क्लियर हो गया होगा इजीली। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोग्राम वर्सेस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, इसको हम लोग कवर कर ही चुके हैं इन द लास्ट स्लाइड, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस। एक बार गो थ्रू कर लो इसको भी, क्योंकि बहुत लोग कल का लेक्चर देख ही नहीं पाए हैं, मैपिंग नहीं हो पा रही है। लेट मी क्लियर इट। ईआरपी में जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी मैपिंग होनी है एलएमएस से, एंड दिस इज गोइंग ऑन डेली बेसिस, दैट्स व्हाई इट टेक्स सम टाइम, बिकॉज वेन एवर अ न्यू स्टूडेंट रजिस्टर्ड इन ईआरपी तो उसको कुछ टाइम लगता है मैपिंग करने में। तो पैनिक मत हुआ करो, वेट किया करो, प्रॉब्लम विल गेट रिजॉल्व। ओके, द टीम इज वर्किंग डे नाइट 24 hours। ओके, डोंट वरी। या प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर डिफरेंस देख ही चुके हो। प्रोग्राम क्या होता है, छोटा होता है, 100 लाइन्स ऑफ कोड, 100 लाइन्स का ही होगा। सॉफ्टवेयर में क्या होगा, बिगर प्रॉब्लम आएगी तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। अब इसको एक बार अपने आप देखना, इजीली देख लोगे। ठीक है। एडहॉक डेवलपमेंट होता ही है प्रोग्राम का, और एक्सप्लोरेटरी स्टाइल को सिस्टमेटिक डेवलपमेंट इंजीनियरिंग के थ्रू होता है ये सॉफ्टवेयर हमारा। ठीक है। इस डायग्राम को भी देख लें, तो जस्ट सी इट, इसमें क्या दिखाया गया है। कभी भी कोई भी हार्डवेयर डेवलप होना है या सॉफ्टवेयर डेवलप होना है, तो उसके लिए प्रॉपर वे, जो सिस्टमेटिक वे है वो यही है। सबसे पहले क्या होना है, फीजिबिलिटी स्टडी। फीजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, वेदर द गिवन प्रॉब्लम इज़ फीजिबल और नॉट। जो कस्टमर ने हमें प्रॉब्लम दी है, यानी जो सॉफ्टवेयर दिया है डेवलप करने के लिए, क्या वो डेवलप हो पाएगा या नहीं, क्या वो कंपनी उसको डेवलप कर सकती है या नहीं, क्या वो बजट में डेवलप हो पाएगा, क्या कंपनी के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उतने सिस्टम्स हैं, उतनी लैब्स हैं, उतने सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं दैट दे कैन डेवलप इट। दिस ऑल कम्स अंडर द फिजिबिलिटी स्टडी। अभी देखो, इसको भी हमें इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी मॉडल्स में कुछ फेजेस होते हैं, उसमें फर्स्ट फेज़ हमारा यही होता है, फिजिबिलिटी स्टडी। उसमें बताऊंगा इंटरनल डीप में कि इसमें होता क्या है, मीटिंग्स अरेंज होती हैं, कैसे कैसे मीटिंग्स होती हैं कस्टमर और कंपनीज की। ठीक है।
we'll study in the feasibility study. ओके, एक बार जब ये एक्सेप्टेंस आ जाती है कंपनी की तरफ से कि ना इट इज़ feasible, नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट, प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स एनालाइज करना, प्रॉपर एसआरएस मेंटेन करना। एसआरएस लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था आपको कि मेन थिंग टू डेवलप एनी सॉफ्टवेयर इज़ एसआरएस। ठीक है, किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए एक एसआरएस होना ज़रूरी है। एसआरएस को ही फॉलो किया जाता है डेवलपमेंट में। ठीक है, ताकि सिस्टमेटिक वे रहे। नेक्स्ट थिंग इज़ रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं हार्डवेयर डेवलपमेंट करना है या सॉफ्टवेयर, उसके बेसिस पे इसको पार्टीशन कर देते हैं। यहाँ पर डेवलपमेंट होता है, कोडिंग होती है, जो भी डेवलपमेंट होना है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोडिंग होगी, हार्डवेयर डेवलपमेंट होगा। इसके अलग फेज़ होते हैं अपने, इसके अलग फेज़ होते हैं। ठीक है, जब जो प्रोडक्ट हमारा डेवलप हो जाता है, वेदर इट इज़ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, लास्ट पॉइंट इज़ इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग। इंटीग्रेशन मीन्स पूरे सॉफ्टवेयर को एक साथ भी टेस्ट करो और मॉड्यूल्स में भी टेस्ट करो। ठीक है, इसके बाद एक और फेज़ होता है जो इसमें नहीं दिखाया गया है, दैट इज़ मेंटेनेंस फेज़। कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसका मेंटेनेंस भी करो। ठीक है, so this is project management. Project can be hardware or software. I think that we should keep off the day. आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, इसके आगे का कल पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर।